Okay, good afternoon all. In this lecture, we will discuss the remaining part of convolutional code. Okay, in this lecture, we will discuss remaining part of convolutional code. In previous lecture, we already discussed the first method that is used for generation of convolutional code, that is polynomial approach. एंड वी डिस्कस सम न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू पॉलिनोमियल अप्रोच है ना, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पॉलिनोमियल अप्रोच के थ्रू कुछ कॉन्वोल्यूशनल कोड जनरेट किए थे. ठीक है, तो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस द रिमेनिंग टू मेथड्स दैट इज यूज फॉर जनरेशन ऑफ कॉन्वोल्यूशनल कोड, दैट इज टाइम डोमेन मेथड एंड मैट्रिक्स मेथड. क्लियर बात यहाँ तक? तो टोटल कॉन्वोल्यूशनल कोड जनरेट करने के तीन मेथड्स होते हैं. एक होता है पॉलिनोमियल अप्रोच, दैट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसफर डोमेन मेथड. Second one is matrix method and the last one is time domain method. क्लियर है? तो कुछ दो तीन न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने पॉलिनोमियल अप्रोच के देखे ही थे. जस्ट एक क्विक रिकॉल कर लेते हैं पॉलिनोमियल अप्रोच के एक न्यूमेरिकल से, और फिर आज का जो हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स मेथड और जो भी हमारा टाइम डोमेन मेथड है हम उसकी तरफ चलेंगे. ठीक है, मैट्रिक्स मेथड और जो भी टाइम डोमेन मेथड है उसकी तरफ चलेंगे हम लोग. ठीक, तो देखिए, सपोज दिस वन इज द डायग्राम ऑफ एनकोडर. दिस वन इज द डायग्राम ऑफ एनकोडर एंड वी हैव टू जनरेट द कॉन्वोल्यूशनल कोड बाय यूजिंग द दिस एनकोडर डायग्राम. तब हम लोग क्या करते हैं, मैंने आप लोगों को क्या बताया था? मैंने आप लोगों को बताया था इन द ट्रांसफर डोमेन मेथड और पॉलिनोमियल अप्रोच. First we convert the message sequence into message polynomials. Then later on we convert the generating sequence into generating polynomial, and at last multiply message polynomial with generating polynomial, and we will get the output polynomial. Okay, and because here there are the two sequence, one is x1 and x2, these are the output sequence, so at last we will get two output sequence, x1 and x2. So for generation of convolutional code, we will take one bit of x1 and x2 and arrange it into sequential manner, and we will get the convolutional code. ऐसे ही हम लोगों ने कुछ किया था, है ना, पिछले लेक्चर में, अगर आप लोगों को ध्यान होगा. तो आज ज़्यादा उसके बारे में डिस्कस नहीं करते क्योंकि हम लोग सीधे ही देख सकते हैं. जैसे सपोज द मैसेज सीक्वेंस इज 110. It means that if we convert this message sequence into terms of polynomial, then we can write it as 1 multiplied by, we can write it as, wait a while, we can write it as 1, this one multiplied by p raised to power 0, the second one multiplied with p raised to power 1, and the last 0 multiplied with p raised to power 2. So when we multiplied 1 with p raised to power 0, and we know that any terms with the power of 0, it means that it is 1. So we will get 1 plus p multiplied by 1, that means p. Okay, so when we convert this first generate a message sequence into terms of polynomial, then we can write it as 1 plus p. Okay, so this one is the message polynomial, and because this one is the message polynomial, so we can write it as np. We can write it as np. Okay, so this one is the first step. क्लियर बात, जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था. ठीक, अब सेकंड स्टेप क्या होता है? वी नो दैट हियर देयर आर द टू आउटपुट्स, वन इज द x1 and another one is the x2, and this for the generation of this x1, this generating sequence is responsible, and we know that in the generating sequence this x1 is only dependent on the first bit, and there is no impact of second bit into this x1. So the generating sequence of this x1 will be 10. That's why we can write this generating sequence as g1. क्लियर बात है यहाँ तक सभी को? क्योंकि ये जो फर्स्ट बिट है, सिर्फ फर्स्ट बिट ही हमारी x1 के लिए डिपेंडेंट है. दैट्स वाई वी राइट हियर 1, and there is no connection between x1 and capital M. That's why we write here 0. Okay, so the first generating sequence g1 will be 10, and when we consider the second output x2, then we know that in this x2 both bits are responsible, and because both bits are responsible, so the generating sequence will be g2. So this generating sequence is g2. Okay, so we will get two generating sequence, g1 and g2. So in second step we convert the generating sequence into generating polynomial.
We convert generating sequence into generating polynomial. So when we convert this first generating sequence, into generating polynomial, so the conversion step is same. First we multiply first bit into p raised to power 0 and later bit into p raised to power 1. Then we will get p raised to power 0 multiplied 1, that means 1, and p raised to power 1 multiplied by 0 equals to 0. So the first generating sequence g1 will be 1. But if we consider the second generating polynomial second generating sequence g2, so when we represent this g2 into generating polynomial, so we can write it as 1 plus p. क्लियर बात है बेटा यहाँ तक सभी को? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास दो जनरेटिंग सीक्वेंस मिल गए G1 एंड G2। ये हमारे दो स्टेप हो गए। फर्स्ट स्टेप में हम लोग मैसेज पॉलिनोमियल निकाले बेटा, सेकंड स्टेप में हम लोग जनरेटिंग पॉलिनोमियल निकाले, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, जब हमें x1 निकालना होगा ना, जब हमें x1 पॉलिनोमियल निकालना होगा, तो हम जानते हैं कि x1 पॉलिनोमियल कैसे निकाला जाता है। x1 पॉलिनोमियल इज नथिंग बट अ डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन विथ मैसेज पॉलिनोमियल विथ द जनरेटिंग पॉलिनोमियल। क्लियर बात है यहाँ तक सभी को? सो जब आप लोग मैसेज पॉलिनोमियल जनरेटिंग पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको x1 पॉलिनोमियल मिल जाएगा। ठीक है, वैसे जब आप लोग x2 पॉलिनोमियल सेकंड आउटपुट पॉलिनोमियल जब आप लोगों को कैलकुलेट करना होगा, तो आप लोग x2 इक्वल टू आप लोग क्या लिखेंगे, mp मल्टीप्लाइड बाई g2p। क्लियर बात? आई थिंक यहाँ पे आप लोगों को कोई भी डाउट्स नहीं होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक सभी को? कोई दिक्कत नहीं है? चलो, तो तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया सीधे सीधे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये तो क्लियर है कि हमें x1 मिल जाएगा, हमें x2 मिल जाएगा, है ना। देखो जो मैंने स्टेप बताए थे पूरे स्टेप वही हैं। हम लोगों ने जनरेटिंग पॉलिनोमियल नंबर 1 निकाल लिया, जनरेटिंग पॉलिनोमियल नंबर 2 निकाल लिया, है ना। अच्छा, इन नोट्स में अगर कुछ अगर आप लोगों को कुछ करेक्शन दिखता है तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ये किसी के हैंड रिटन नोट्स हैं जिसमें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो हो सकता है इसमें कुछ कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम हो, और जहाँ पे प्रॉब्लम हो आप लोग डेफिनेटली चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा कि कहाँ पे गलत है इसमें। ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है किसकी कुछ क्वेश्चन के आंसर इसमें गलत मेंशन कर दिए होंगे, लेकिन जो मैं आप लोगों को स्टेप्स बता रहा हूँ आप स्टेप फॉलो कीजिए, और आप लोग कभी भी चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि क्या सही आंसर है क्या गलत है, मैं डेफिनेटली रिप्लाई कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है, ये हमारा मैसेज सीक्वेंस है, मैसेज सीक्वेंस हमने मैसेज पॉलिनोमियल निकाल लिया। ठीक, नाउ first our x1 polynomial is the multiplication of mp into g1p, so multiplied mp with g1p we will get 1110. Second, when we multiplied second message polynomial with generating polynomial, then we will get x2। ठीक है बेटा, सभी को क्लियर है? तो देखो यहाँ पे आप लोग एक चीज आप लोग ध्यान देना, ये हमारी 101 हमारा x2 है, क्लियर है, और x1 क्या है 110। मैं दोनों को एक साथ लिखता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, हमारा x1 इक्वल्स टू क्या है 110, क्लियर है, और x2 क्या है हमारा 101। ठीक, x2 इक्वल टू हमें मिला है 101 और x1 इक्वल्स टू हमें मिला है 110। तो बेटा जब हम लोग एट लास्ट जब हम लोग ओवरऑल कॉन्वोल्यूशनल कोड बनाते हैं ना, तो कॉन्वोल्यूशनल कोड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ आउटपुट्स, दैट मीन्स व्हेन वी कंबाइन x1 and x2 and make a sequence, then we will get the overall convolutional code. It means that we have to take the first bit of x1 and first bit of x2, second bit of x1 and second bit of x2, third bit of x1 and third bit of x2, and when we combine all this, then we will get a convolutional code. So the convolutional code for this above question is 1 1. Why this 1 1? Because the first bit is 1 1. Now the second bit is 1 0. That means 1 0, and the later on the last one is 0 1. So the last bit is 0 1. क्लियर बात है यहाँ तक सभी? सो दिस वन इज द लास्ट आंसर, है ना। दिस एक्स इज द लास्ट कॉन्वोल्यूशनल कोड 111001 111001। क्लियर है यहाँ तक? किसी को दिक्कत नहीं है? 111001, ये देखिए, दिस वन इज द लास्ट आंसर, दिस वन इज द कॉन्वोल्यूशनल कोड, आई होप जितने भी स्टूडेंट्स लेक्चर अभी देख रहे हैं आप लोग साथ में क्वेश्चंस बनाते जाइएगा, है ना, क्योंकि जो भी अगर डाउट होंगे आप लोगों को तो मैं आप लोगों को बता सकूं। ठीक है, और साथ में आप लोग अटेंडेंस भी एक बार दे दीजिएगा कि मुझे पता ही नहीं है कि अभी कितने स्टूडेंट्स लाइव हैं,
तो आप लोग साथ में अटेंडेंस भी अगर यहाँ पे मेंशन कर देंगे तो मेरे लिए कुछ ईजी हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही एक और क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आप अपने लिए एक होमवर्क मान सकते हैं, है ना। ये वाला क्वेश्चन अपने लिए होमवर्क की तरह आप ले सकते हैं। अगर कुछ भी आप लोगों को समझने में दिक्कत होगी तो आप लोग कभी भी इस टाइप से कभी भी आप लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, है ना। कभी भी डाउट पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में आप लोग कभी भी डाउट पूछ लीजिएगा। जब भी मुझे फ्री रहूँगा, जब भी मैं फ्री रहूँगा तो श्योरली आप लोगों का आंसर करूँगा। ठीक, तो जल्दी जल्दी हम लोग एक बार क्विक आप लोगों को क्विक आप लोगों को पूरा जो मेथड था रिकॉल कर लेते हैं हम लोग, है ना। सबसे पहले जो भी हमारा मैसेज सीक्वेंस है, convert this message sequence into message polynomial, convert the binary sequence, convert the generating sequence into generating polynomial, है ना। और multiplied generating polynomial with the message polynomial, so we will get the last answer, है ना। मुझे 6 स्टूडेंट्स तो अभी लाइव दिख रहा है ना, 6 स्टूडेंट्स तो अभी मुझे लाइव दिख रहा है। बाकी स्टूडेंट भी जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा, बाकी स्टूडेंट्स भी जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा। आई होप मेरी वॉइस वगैरह क्लियर है ना। चलिए, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहा, सॉल्व कीजिएगा इसको। ठीक है, कुछ भी दिक्कत होगी होगी तो आप लोग पूछ सकते हैं कभी भी। नाउ टुडे आवर टॉपिक इज मैट्रिक्स मेथड फॉर जनरेशन ऑफ कॉन्वोल्यूशनल कोड। ठीक है, जैसे हम लोगों ने ऊपर वाले मेथड के थ्रू कॉन्वोल्यूशनल कोड जनरेट किया था ना, सेम हमारा मैट्रिक्स मेथड एक नया मेथड है, इसके थ्रू भी हमारा सेम पर्पस है कि वी हैव टू जनरेट कॉन्वोल्यूशनल कोड। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ईजी है। जैसे हम लोग पॉलिनोमियल मेथड में क्या कर रहे थे, हम लोग चाहे जनरेटिंग सीक्वेंस हो चाहे मैसेज सीक्वेंस हो, दोनों को हम लोग इन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट कर रहे थे, है ना। अगर x1 एंड x2 के नंबर ऑफ बिट आंसर में अलग अलग होते हैं, अलग अलग अगर x1 और x2 के नंबर ऑफ बिट अलग अलग होते हैं तो उसको इक्वल करने के लिए आप लोग 0 ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर x1 और x2 के नंबर ऑफ बिट अलग अलग होते हैं, जो भी आपके आंसर आते हैं अगर उसमें नंबर ऑफ बिट अलग होते हैं तो आप लोग उसमें 0 ऐड कर सकते हैं लास्ट में। क्योंकि किसी को भी कोई भी पॉलिनोमियल को अगर हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मतलब 0 ही होता है ना। अगर हमारा आंसर एक पहला हमारा x1 आ रहा है 101 और सेकंड आ रहा है हमारा 10101, है ना। सेकंड x2 हमारा 5 बिट का है, x1 हमारा 3 बिट का है, तो उसको भी 5 बिट में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग लास्ट में 2 0 ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक, और भी किसी को कुछ डाउट होगा तो आप लोग चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो, तो मैट्रिक्स मेथड में हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स मेथड में चाहे हमारा जनरेटिंग सीक्वेंस हो चाहे हमारा मैसेज सीक्वेंस हो, जनरेटिंग सीक्वेंस और मैसेज सीक्वेंस दोनों को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ, दोनों को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, दोनों को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर बात है। ठीक है, तो जो भी हमारी मैसेज सीक्वेंस होती है ना बेटा, मैसेज सीक्वेंस हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स बनती है, देखो यार, है ना। जैसे ये हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स हुई और ये हमारी सेकंड मैट्रिक्स हुई। क्लियर है, तो जब हम लोग मैट्रिक्स मेथड पढ़ते हैं ना बेटा, तो जो हमारा मैसेज होता है वो हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स होती है, और जो हमारा जनरेटिंग सीक्वेंस होती है वो हमारी सेकंड मैट्रिक्स होती है। इसको थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे जी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, है ना। तो जब आप लोग m और g को आपस में मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन करेंगे देन यू विल गेट x1 मैट्रिक्स, ठीक, बात सभी को समझ में आया। ठीक है, अच्छा एक बात और, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आप लोगों को आंसर सॉल्व करने में बहुत मदद करेंगे। जो हमारी मैसेज मैट्रिक्स होती है ना बेटा, वो हमेशा 1 क्रॉस n के टर्म्स में होती है, 1 क्रॉस n के टर्म्स में होती है। ठीक है, और 1 क्रॉस n मतलब ये सिंपल एक रो ही बनेगी, जो हमारी मैसेज सीक्वेंस है वो सिंपल एक रो ही बनेगी। जैसे मैंने यहाँ पे 10101 लिख दिया ना, 11011, तो इस टाइप की जो भी हमारी मैसेज होगी ना बेटा, जो हम लोग डायरेक्टली इनपुट में प्रोवाइड करते हैं उसको आप लोग डायरेक्ट मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज कर सकते हो, उसमें कुछ भी हमें करने की जरूरत नहीं है ना। तो ये मैट्रिक्स कितनी हो गई, ये मैट्रिक्स हमारी हो गई 1 क्रॉस 5 की। क्लियर बात है। जो हमें मेन जो सोचना होता है, जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो हमें ध्यान देना होता है, वो हमारा सेकंड है। क्या सेकंड मतलब, वो हमारी जनरेटिंग मैट्रिक्स है, जनरेटर मैट्रिक्स है। जनरेटर मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए हमें जनरेटर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स को ध्यान में रखना होता है ना। और जो भी नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स हमें हमेशा कैलकुलेट किए जाते हैं बाय मल्टीप्लाइंग n क्रॉस l प्लस m-1, है ना। हमेशा ध्यान रखना, हाउ कैन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉलम्स इन जनरेटर मैट्रिक्स,
for the calculation of number of columns in generating matrix, you have to multiply small n with l plus m minus 1. Here the first one, here this small n is known as number of generating sequence. Number of generating sequence means आप लोग सीधे सीधे समझिए बेटा, n मतलब नंबर ऑफ आउटपुट, आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि ये तो बिल्कुल क्लियर सी बात है कि जितने हमारी जनरेटिंग सीक्वेंस होगी, जैसे अगर आप लोगों को समझने में भी दिक्कत आ रही होगी, ऐसा कुछ मैंने ले लिया है ना, यहाँ से मैंने ले लिया x1 और यहाँ से मैंने ले लिया x2, ऐसा कुछ यहाँ पे देखिए है ना। जल्दी से मैं कुछ रफली एक डायग्राम पुट अप करता हूँ, है ना। सपोज यहाँ पे आप देखिए कि ये हमारा फर्स्ट वाला जो एरो है, यहाँ से हमें x1 मिल रहा है, यहाँ से हमें x2 मिल रहा है ना। तो दैट मीन्स यहाँ पे हमें अगर x1 मिल रहा है और यहाँ से हमें x2 मिल रहा है, तो हमारे पास दो आउटपुट है, मतलब हमारे पास यहाँ पे दो जनरेटिंग सीक्वेंस होगी। तो इस x1 को निकालने के लिए हमें g1 जनरेटिंग सीक्वेंस की जरूरत पड़ेगी, और इस x2 को निकालने के लिए हमें g2 जनरेटिंग सीक्वेंस की जरूरत पड़ेगी, है ना। इस g1 की वैल्यू क्या होगी, ये देखो, ये x1 से g1 मिलेगा, और x1 निकालने के लिए आप इसकी लाइंस को देखेंगे, ये सिर्फ फर्स्ट वाली बिट पे डिपेंडेंट है, सेकंड वाले बिट पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो इस g1 की वैल्यू होगी 1 0, सेकंड वाली g2 की वैल्यू होगी 1 1, जो हम लोगों ने प्रीवियस एक क्वेश्चन में देखा भी था। क्लियर, आई थिंक यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को, है ना। तो आप लोग इसको नंबर ऑफ जनरेटिंग सीक्वेंस भी समझ सकते हैं या नंबर ऑफ आउटपुट भी समझ सकते हैं, ठीक है, दोनों का मतलब वही है। क्लियर बात है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी है आप लोग चैट बॉक्स में पूछते जाइएगा, मैं डेफिनेटली आप लोगों का आंसर करूँगा। नाउ ये जो स्मॉल एम है ना बेटा, ये जो स्मॉल एम है, वो जनरेटिंग सीक्वेंस के अंदर जो नंबर ऑफ बिट्स हैं वो है, जनरेटिंग सीक्वेंस के अंदर जो नंबर ऑफ बिट्स हैं वो है, ठीक है। अब आप इसको ऊपर वाले क्वेश्चन में समझिए। ये हमारी ये हमारी ये हमारा क्वेश्चन, इसमें हमारे पास दो आउटपुट है, एक x1 है, एक x2 है। ये x1 के लिए ये जनरेटिंग सीक्वेंस हुई, ये हमारी g2 जनरेटिंग सीक्वेंस जो हमारी है, ये हमारी g2 जनरेटिंग सीक्वेंस हुई, ये हमारी g1 जनरेटिंग सीक्वेंस हुई, ये हमारी g2 जनरेटिंग सीक्वेंस हुई। क्लियर बात है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करता, तो यहाँ पे कितने हमें जनरेटिंग सीक्वेंस मिल रही हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें दो जनरेटिंग सीक्वेंस मिल रही हैं, दैट मीन्स n इक्वल्स टू स्मॉल n इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, है ना। लेकिन each generating sequence consists three different bits. Each generating sequence consists three different bits. It means that if we solve this question by using matrix method, then we can say the value of small m equals to 3. क्लियर बात है, क्लियर, सबको समझ में आया। मतलब ये हुआ कि जो जनरेटिंग सीक्वेंस है ना बेटा, उसी को देख के आप लोग इस n और इस m की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। बात समझ में आई सभी को बात क्लियर है। चलो जल्दी से एक आध एग्जांपल बोल देता हूँ, आप लोग बताइएगा। यहाँ पे ले लिया मैंने G1, G2, G3, G4, मैंने 4 लिया जनरेटिंग सीक्वेंस। अगर 4 जनरेटिंग सीक्वेंस है तो ये हमारा श्योर है कि हमें 4 आउटपुट्स मिलेंगे। क्लियर बात। पहली जनरेटिंग सीक्वेंस है 1 0, ये हमने ले लिया 0 1, ये हमने ले लिया 1 1, और लास्ट वन मैंने ले लिया इसको ही मैंने 1 ले लिया 1 0। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि बताइए मुझे n की वैल्यू और n की वैल्यू बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड में क्या हो रही है। n मीन्स नंबर ऑफ जनरेटिंग सीक्वेंस। कितनी नंबर ऑफ जनरेटिंग सीक्वेंस है, 1 2 3 4। इट मीन्स दैट वैल्यू ऑफ स्मॉल n विल बी 4, ठीक। एंड m इक्वल्स टू, you have to check the number of bit in each generating sequence। सभी में देखिए जनरेटिंग सीक्वेंस में number of bits will be, number of bits is 2, that means the value of small m equals to 2। क्लियर है। आई थिंक ये स्मॉल n और स्मॉल m की वैल्यू को कैलकुलेट करने में अब आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिर भी कुछ डाउट्स होंगे तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ कॉलम निकालने के लिए ये सब करते हैं। तो स्मॉल m की वैल्यू हमें पता चल गई। अब ये जो l है, ये हमें क्वेश्चन में जो भी मैसेज दिया होगा उससे हमें फाइंड आउट करना है। जैसे इस क्वेश्चन में ऊपर एक क्वेश्चन जो दिया था, इसमें आप लोग देखिए ये हमारा मैसेज है। इसमें मैसेज में नंबर ऑफ बिट कितनी दिए हैं, इस मैसेज में आप लोग नंबर ऑफ बिट काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। इट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ कैपिटल L विल बी 5। ओके, सो
फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व कीजिएगा, l plus m minus 1 that means 5 plus 3 minus 1, so you will get 7 and 7 3s are 21. It means that the generating column consists 21 number of generating matrix consists 21 number of columns, है ना। जो भी हमारी जनरेटिंग मैट्रिक्स होगी उसमें 21 कॉलम्स होंगे। क्लियर बात है, सभी को समझ में आया? ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। अब ये जो 21 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, इस कॉलम में भी तो हमें कुछ वैल्यूज को पुटअप करना होगा। अब ये वैल्यूज कैसे पुटअप होती हैं हम लोग वो देखेंगे अब आगे। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आया? चलो, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्वेश्चन देखता है। इसको सॉल्व करने के लिए सीधे सीधे हमें क्वेश्चन की तरफ जाना है। सपोज दिस वन इज द क्वेश्चन, यहाँ पे हमें दिया गया है n माइनस दिस वन इज द कॉन्वोल्यूशनल कोड। अच्छा, जब आप लोगों ने ब्लॉक कोड पढ़ा था बेटा, तो आप लोगों को याद होगा कि ब्लॉक कोड में जब भी कोई कोड होता था, जब भी कोई कोड लिखना होता था, तो हम उसको n माइनस के टर्म में रिप्रेजेंट करते थे। ऐसा ही होता था ना। अगर कभी भी इस टाइप का कोड रिप्रेजेंटेशन होता है तो इसको हम लोग ब्लॉक कोड कहते थे। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था ये, जब हम लोगों ने आई थिंक सेकेंड यूनिट पढ़ रहे थे तभी हम लोगों ने देखा था। ये हमारे ब्लॉक कोड्स का रिप्रेजेंटेशन ऐसा ही होता था। लेकिन जो हमारा, ठीक है यहाँ तक समझ में आया। लेकिन जब हम लोग कॉन्वोल्यूशनल कोड की बात करते हैं ना बेटा, तो कॉन्वोल्यूशनल कोड को हमेशा n माइनस वन n कॉमा वन कॉमा के फॉर्म में लिखा जाता है। कैसे? कोई भी कॉन्वोल्यूशनल कोड को हमेशा n कॉमा वन कॉमा m के फॉर्म में लिखा जाता है। क्लियर बात है यहाँ तक सभी को? ठीक है, यहाँ पे जो स्मॉल n है ना बेटा, ये हमारे आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाउ मैनी आउटपुट्स आर देयर इन द एनकोडर डायग्राम। क्लियर है बात? जो बीच वाले बिट है वो हमारे मैसेज बिट को रिप्रेजेंट करते हैं। और हम जानते हैं बिकॉज द कॉन्वोल्यूशनल कोड इज सीक्वेंशियल कोड, सो ऑलवेज वन बिट इज इंसर्टेड इनटू अ एनकोडर डायग्राम एंड अकॉर्डिंग टू वन बिट द आउटपुट विल जनरेट, है ना। तो ये जो मिडिल वाली जो बिट है ना बेटा, ये हमेशा कॉन्सेप्ट बना लीजिए कि हमेशा वन ही होगी कॉन्वोल्यूशनल कोड में, क्योंकि एक बार में एक ही बिट का कन्वर्जन होता है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है पहली बिट का और लास्ट बिट का। ठीक, पहली बिट क्या दिखाएगी? पहली बिट दिखाएगी नंबर ऑफ आउटपुट। पहली बिट क्या दिखाएगी? नंबर ऑफ आउटपुट। अगर यहाँ पे 3 है, अगर यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, इट मीन्स दैट इन योर एनकोडर डायग्राम यू हैव टू ड्रॉ 3 डिफरेंट x, that means x1 x2 x3। clear? Now what is the value of, what is this m? This m is nothing but the number of register that store the past bit, है ना। या आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो कैपिटल एम और कैपिटल, जो हम लोग कैपिटल एम जो रिप्रेजेंट करते थे ना बेटा, वो होता है हमारा ये थर्ड बिट। क्लियर बात? तो अगर हमारे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आप लोगों को एक एनकोडर का डायग्राम ड्रॉ करना है जिसकी वैल्यू है, जिसका रिप्रेजेंटेशन है n 3 - 1 3 1 2, तो इस सिर्फ और सिर्फ इस ब्रैकेट से मुझे क्या क्या चीज़ें क्लियर हो जाएंगी? सिर्फ और सिर्फ इस ब्रैकेट से मुझे क्या क्या चीज़ें क्लियर हो जाएंगी? क्या लिखा होता है? मतलब 3 - 1 2 लिखा था आई थिंक ना। 3 - 1 2 लिखा था आई थिंक। तो इससे मुझे क्या क्या चीज़ें क्लियर हो जाएंगी? मुझे क्लियर हो जाएगा कि मुझे 2 कैपिटल्स एम बनाना है। ये मेरा जनरेटर हो गया। हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 दी है, दैट मीन्स हमारे पास 2 ही m होंगे, एक होगा m1 और एक होगा m2, है ना। 2 कैपिटल m होंगे। और जो फर्स्ट बिट होती है, ये जो हमारा फर्स्ट बिट होता है, इसको तो हम लोग स्मॉल m ही बोलते थे। ये प्रेजेंट बिट का एड्रेस था, यहाँ प्रेजेंट बिट आती थी, है ना। इस चीज़ से हम ये इतना डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर बात? इस स्मॉल वन को आप लोग हमेशा नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्मॉल m ये रिप्रेजेंट करता है कि 1 बाई 1 बिट ही हमारी इंसर्ट हो रही है एनकोडर के, ये कॉन्वोल्यूशनल एनकोडर के डायग्राम में। अब ये जो 3 है, 3 रिप्रेजेंटेड दैट देयर आर द 3 डिफरेंट आउटपुट्स x1 x2 एंड x3। ठीक, और यहाँ पे इसको आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं एक कम्यूटेटर से, एंड दिस कम्यूटेटर प्रोवाइड द ओवरऑल आउटपुट x, एंड दिस x विल बी, ये x क्या हो जाएगा? x1 x2 x1 x2 x3, फिर से x1 x2 x3 x1 x2 x3 x1 x2 x3 x1 x2 x3, जब तक हमारा पूरा कन्वर्जन ना हो जाए। ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आई? तो सिर्फ और सिर्फ इस 3 - 1 3 - 1 2 से ही हम लोग इतना बना सकते हैं जितना मैंने अभी इनको डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। क्लियर बात? सभी को समझ में आया?
अब देखते हैं, अब यहाँ पे देखो 3 जनरेटिंग सीक्वेंस दी गई है, G1 G2 G3। G1 है 110, तो चलो G1 110 है, G1 की वैल्यू 110 है, G1 से हमें X1 मिलेगा, G1 110 है, तो यहाँ पे एक एडर डाल दिए 110, दैट मीन्स फर्स्ट बिट, सेकंड बिट, लास्ट वाली बिट नहीं डालेंगे क्योंकि थर्ड बिट हमारी 0 थी। ठीक, तो इस एडर की जनरेटिंग सीक्वेंस क्या हो जाएगी 110, दिस वन इज द G1, and by using G1 you can calculate the X1। clear यहाँ तक? Now the second G2 is 101, it means that for इट मीन्स दैट, ध्यान दीजिएगा, इट मीन्स दैट जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ना बेटा, जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे 101, तो ये मैंने एक एनकोडर का डायग्राम बना लिया, एडर बना लिया यहाँ पे 101, तो ये पहले बिट को यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, लास्ट बिट को यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, सेकंड बिट को डालेंगे नहीं क्योंकि इसकी जो भी वैल्यू थी, इस जनरेटिंग सीक्वेंस की वैल्यू थी 101 थी। क्लियर बात, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया सभी को? ठीक, क्लियर है? तो वैसे हम लोग G3 की भी वैल्यू डाल पुट अप कर सकते हैं। सो अगर हमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले बोला गया है ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ एनकोडर, तो आप लोगों को ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आप लोगों को ब्लॉक डायग्राम ना दिया हो, आप लोगों को एनकोडर का डायग्राम ना दिया हो, आप लोगों को बोला जा रहा है कि बाय यूजिंग द स्टेटमेंट यू हैव टू ड्रॉ द एनकोडर डायग्राम, तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक, नाउ द सेकंड टास्क इज फाइंड आउट द जनरेटर मैट्रिक्स। मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जनरेटर मैट्रिक्स कैलकुलेट करने के लिए जो जनरेटर मैट्रिक्स होती है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स को हम लोग इस कैलकुलेशन के थ्रू फाइंड आउट करते हैं, एन क्रॉस एल प्लस एम माइनस वन। क्लियर बात? अब यहाँ पे देखो, जो हमारा इनपुट है, जो हमारा मैसेज गिवन है वो हमारा 5 बिट का दिया है। क्लियर बात? तो कैपिटल एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल एल की वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक है, स्मॉल, अब यहाँ पे जो हमारी ये जो हमारा m था, ये क्या था, जनरेटिंग सीक्वेंस में नंबर ऑफ बिट था, जनरेटिंग सीक्वेंस में नंबर ऑफ बिट कितनी है, 3 है, जनरेटिंग सीक्वेंस कितनी है, 3 है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने आगे जाएंगे, 21। क्लियर बात है सभी को? ठीक है, तो ये जनरेटर का डायग्राम हो गया बेटा, और अब हम जो भी हमारी जनरेटर मैट्रिक्स है उसमें हम लोगों ने 21 कॉलम्स को ड्रॉ कर लिया। ध्यान दीजिए, यहीं पे आप लोगों को समझने में दिक्कत आएगी। अब देखो, जब हम लोग x फाइंड आउट करते हैं, x इज आउटपुट मैट्रिक्स, आउटपुट मैट्रिक्स इज नथिंग बट अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैसेज मैट्रिक्स विद द जनरेटर मैट्रिक्स। मैसेज मैट्रिक्स मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी हमारा मैसेज होता है, जो भी हमारा मैसेज होता है, डायरेक्टली उसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स, है ना, क्योंकि यहाँ पे 11101 दिया हुआ है, तो सीधे सीधे हमने 111101 हमने भी पहले मैसेज मैट्रिक्स को मान लिया। जनरेटर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स इज 21, जनरेटर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम इज 21। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम 21 थे, तब हम लोग ये 21 सीक्वेंस लिख लिया। आप लोगों का डाउट आना चाहिए कि सर ये कहाँ से आ गया, है ना, ये कहीं से आता नहीं बेटा, ये सीधे सीधे जो भी हमारी जनरेटिंग सीक्वेंस होती है ना, जनरेटिंग सीक्वेंस के जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग सिक्वेंशियल मेंशन कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले G1 के एलिमेंट्स को हम लोगों ने लिखा है, आप लोग देखेंगे ये 110 ये G1 है ना, उसके बाद वाला जो 101 है ना, ये हमारा G2 है, उसके बाद देखो ये जो 111 है ना, ये हमारा G3 है ना। हमें तो जो कॉलम बनाने थे, हमें 21 कॉलम्स बनाने थे, लेकिन ये तीनों जनरेटिंग सीक्वेंस को मिला के तो हमारी 9 बिट ही कैप्चर हुई है। ठीक है, क्योंकि हमारी 9 बिट ही कैप्चर हुई है, इसलिए हमें कितने बिट्स और ऐड करना होगा हमें 21 बिट को बनाने के लिए, तो हमें 12 जीरोस को ऐड करना होगा। दैट्स वाई वी हैव एडेड 12 जीरोस हियर, है ना। लास्ट में हम लोगों ने 12 जीरोस को पैड किया है यहाँ पे, है ना, 12 जीरोस को अटैच कर दिया, तो 12 जीरोस हो गए, और ये हमारे हो गए 9 हमारी जनरेटिंग सीक्वेंस की बिट हो गई, जो फर्स्ट 9 है हमारी जनरेटिंग सीक्वेंस की बिट हो गई। लास्ट हमारे 12 जीरोस हमारे हो गए जो भी हमारे 21 कॉलम्स को कंप्लीट करने के लिए जो हमें ऐड करने थे। ठीक है, तो अब ओवरऑल जो सीक्वेंस हो गई हमारी जनरेटिंग सीक्वेंस में जो नंबर ऑफ कॉलम हो गए वो हमारे 21 हो गए। क्लियर है? आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट्स नहीं आने चाहिए किसी में। ठीक, यहाँ तक सभी को समझ आ गया। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मैसेजेस, नंबर ऑफ बिट इन मैसेज 5 है ना, और
तो मुझे डेफिनेटली इनका मल्टीप्लिकेशन तभी हो पाएगा इस मैट्रिक्स का। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, एक मिनट, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 × 5, है ना। तो श्योरली मुझे ये वाली जो मैट्रिक्स बनानी होगी वो 5 × 21 की बनानी होगी, तभी तो ये जो इसका इनर एलिमेंट है, इसका आउटर एलिमेंट है और इसका इनर एलिमेंट जब सेम होता है तभी तो हम लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर पाते हैं, है ना। तो अगर मुझे 1 × 5 के साथ किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो श्योरली हमें यहाँ पे भी 5 रोज लेनी होगी। अब ये 5 रोज कैसे जनरेट होंगी, 21 कॉलम्स तो मुझे समझ में आ गया। अब ये जो बाकी 4 रोज है वो कैसे आएंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जनरेटिंग सीक्वेंस में 3 बिट थे, तो हम लोग ये जो 3 बिट्स हैं, इन 3 बिट को शफल करके मूव करा के अपनी सीक्वेंस के पहले ऐड करते जाते हैं, है ना। तो ये जो 3 बिट्स हैं, जब हम उसको पहले अटैच करेंगे तो ये देखो, ये जो लास्ट की ये जो 3 बिट्स थी वो हमारी यहाँ पे आ गई, बात समझ में आई। अब क्या होगा, फिर से लास्ट की जो यहाँ पे 3 बिट्स थी इनको हम लोग फिर से ये जो स्टार्टिंग की 3 बिट्स बना दी, है ना। तो जैसे जैसे ये जो लास्ट बिट और फर्स्ट बिट बनते जाएंगे तो ये बाकी बिट्स हमारी लेफ्ट साइड मूव कर, इस साइड मूव करते जाएंगे, है ना। अब हमारी सीक्वेंस में फिर से 3 बिट बच रही हैं, ये 3 बिट्स को फिर से हम लोगों ने फर्स्ट में ट्रांसफर कर दिया, बात समझ में आई। जो लास्ट की ये जो 3 बिट्स है बेटा वो यहाँ पे फिर से ट्रांसफर हो गई। अभी भी हमें लास्ट में 3 बिट्स मिल रही हैं, फिर से हमने इसको ट्रांसफर किया तो ये भी फर्स्ट की 3 बिट्स बन गई, बात समझ में आई। थ्री बिट्स को 3 बिट्स क्यों लिया, नंबर ऑफ जनरेटिंग सीक्वेंस में हमारी 3 बिट्स है, इसलिए 3 बिट्स को हमने शिफ्ट किया। ठीक। अब आप लोग जब पूरा ये जब वो देखेंगे ना, आप लोग जब शिफ्टिंग करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि स्टार्टिंग के जो 9 बिट्स थे ना वो हमें लास्ट में अवेलेबल हो जाएंगे। आप लोग चेक कर लीजिएगा, जो स्टार्टिंग के जो 9 बिट्स थे ना वो हमें लास्ट में अवेलेबल हो जाएंगे जब आप लोगों का पूरा ये मैट्रिक्स बन के तैयार होगी तो। ठीक। इसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना है, सीधे सीधे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स की कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है, सबसे पहले ये जो हमारी रो है ये हमारी पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होती है ना। ये हमारा जो पहला कॉलम है बेटा, इसके इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो कैसा होगा, 1 × 1 दैट मीन्स 1। ठीक। इसके बाद फिर से क्या लगेगा, एक्सॉर। नाउ 1 × 0 दैट मीन्स 0, एक्सॉर। फिर 1 × 0 दैट मीन्स 0, एक्सॉर। Later on, 0 × 0 it means that 0, and the last one is 1 × 0 it means 0. So when we are doing the Motu operation or XORing operation, then we will get 1 XOR 0 it means 1, 1 XOR 0 it means 1, 1 XOR 0 it means 1, 1 XOR 0 it means 1. So जब ये फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मुझे पहली बिट 1 मिल जाएगी। आई थिंक इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। वैसे ही जब हम लोग इस सेकंड बिट फाइंड आउट करने के लिए इस रो को हम लोग इस मैसेज मैट्रिक्स के को हम लोग सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेकंड बिट जो भी आएगी हमें मिलेगी। फिर वैसे फर्स्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड बिट मिलेगी, फोर्थ से मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्थ बिट मिलेगी। तो टोटल हमें ऐसे कितनी बिट्स मिल जाएंगी, टोटल हमें यहाँ पे 21 बिट्स मिल जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक। आप लोग ये चेक कर सकते हैं, जब आप लोग इसको काउंट करेंगे तो टोटल 21 बिट्स होंगे। ठीक है। तो इसकी एक खास बात यह है कि इसमें ये जो मैट्रिक्स मेथड है इसमें आप लोगों को कम्यूटेटर में जैसे ऊपर के मेथड में हम लोग x1 की एक बिट, x2 की एक बिट, x3 की एक बिट, फिर से x1 की एक बिट, x2 की एक बिट, x3 की एक बिट, ऐसे लेके जब हम लोग सीक्वेंस बनाते थे ना उस टाइप का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं किया जाता है। इसमें एक ही बार में पूरा कन्वर्जन हो जाता है। बस इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है, ये जो मैट्रिक्स है इसको बनाना ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए टफ होगा। ये अगर आप लोग ड्रॉ कर पाए तो फिर ये क्वेश्चन बहुत ईजी। ठीक। चलो अगर मैं पूछूं कि इसको आप लोग जो भी कॉन्वोल्यूशनल कोड का ब्रैकेट रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें अगर आप लोग रिप्रेजेंट कीजिए तो इसको क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल एम की वैल्यू 1 है, मैसेज है हमारे, आउटपुट है हमारे 2, तो हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2, 1, 1। ये जो फर्स्ट वाली बिट है वो एन को रिप्रेजेंट करती है, लास्ट वाली बिट हमारी कैपिटल एम को रिप्रेजेंट करती है ना। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल एम की वैल्यू हमारी 1 है क्योंकि एक ही बॉक्स है, तो हमने यहाँ पे 1 लिया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 x1 x2 है तो हमने यहाँ पे 2 ले लिया। क्लियर बात, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, समझ में आया। तो देखिए
ये इसका ब्रैकेट रिप्रेजेंटेशन हुआ, इसको कॉन्वोल्यूशनल रिप्रेजेंटेशन भी कहा जाता है, ठीक है। और फर्स्ट वाला जो हमारा n कॉमा k था उसको ब्लॉक कोड रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। आई थिंक ये सब क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब इसकी जनरेटिंग सीक्वेंस देखिए, इस x1 की जनरेटिंग सीक्वेंस हो गई 1 0, इसकी जनरेटिंग सीक्वेंस हो गई 1 1। कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे? 1 0 समझ में आ रहा है क्यों लिखा मैंने 1 0? क्योंकि सिर्फ पहली वाली बिट ही यहाँ से कनेक्टेड है। तो 1 0 सेकंड, इसका मतलब हुआ g की वैल्यू 1 हो गई, और हर एक g में 2 बिट है, दैट मीन्स स्मॉल m की वैल्यू भी 1 होगा। g की वैल्यू 2 हो गई, और जो स्मॉल m है उसकी वैल्यू भी 2 हो गई। तो ये देखो, ये जो फर्स्ट है ये हमारे g की वैल्यू हो गई, और ये है वो हमारे उस g के अंदर के जो नंबर बिट्स हैं उसकी वैल्यू। ठीक। अब ये जो l है, ये l क्या, ये है नंबर ऑफ मैसेज, नंबर ऑफ बिट इन मैसेज, तो ये हमारा 3 हो गया। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये प्लस नहीं है ना, एक मिनट, ये l प्लस m होता है, ठीक है, ये l प्लस m होता है ना। तो 3 + 2 = 5 - 1 = 4, 2 ज़ा 8। तो हमें पता चल गया कि हमें टोटल 8 कॉलम्स यूज़ करने पड़ेंगे। जनरेटिंग बिट में देखिए 2 2 बिट थे, तो 8 कॉलम बनाने के लिए 2 2 बिट को शफल करना होगा, ये भी मुझे क्लियर हो गया। ठीक। अब देखो कौन कौन सी जनरेटिंग सीक्वेंस बनी बेटा यहाँ पे। एक जनरेटिंग सीक्वेंस है हमारी 1 0, और एक जनरेटिंग सीक्वेंस है हमारी 1 1। दो जनरेटिंग सीक्वेंस है। तो ये देखो स्टार्टिंग के जो 4 बिट है ये तो हमारी जनरेटिंग सीक्वेंस वाले बिट ही हो गए, लेकिन क्योंकि हमें 8 कॉलम्स कंप्लीट करना है तो लास्ट के 4 बिट्स हमारे 0 0 हो जाएंगे। जनरेटिंग सीक्वेंस में 2 बिट है, तो 2 2 बिट को मूव कराते जाओ। ये 2 बिट को पहले लाए तो ये सेकंड कॉलम बन गया, सेकंड कॉलम बन गया, सेकंड कॉलम बन गया, और वैसे ही लास्ट की 2 बिट को जब फिर से शिफ्ट करोगे तो आपका थर्ड कॉलम बन, आपका थर्ड रो बन जाएगा। क्लियर। और एट लास्ट आप लोग चेक कीजिएगा, जो फर्स्ट जो आप लोगों की जनरेटिंग सीक्वेंस थी वो सबसे लास्ट में ट्रांसफर हो जाएगी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? तो समझ में आई ये बात सभी को? इसके बाद क्या करना है, सीधे सीधे जो हमारा मैसेज है बेटा उसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मैसेज को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मैसेज को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग जनरेटिंग मैट्रिक्स से, मैसेज मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे जनरेटिंग मैट्रिक्स से। और जब मैसेज मैट्रिक्स और जनरेटिंग मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी ओवरऑल ना। मल्टीप्लिकेशन के लिए तो सच फिर से मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 1 × 1 एक्सॉर 1 × 0 एक्सॉर 0 × 0, जो भी। बात सबको समझ में आई यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक। नाउ ये वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा, है ना। ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर नहीं गिवन है, तो ये वाला क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये आप लोग एक होमवर्क की तरह ले लीजिए, ये आप लोग सॉल्व करेंगे। और भी कुछ क्वेश्चंस अगर आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं, बुक में आप लोगों को मिलते हैं, तो आप लोग उससे भी सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। और जितने भी जनरेटिंग मैट्रिक्स, जितने भी हमारे कॉन्वोल्यूशनल कोड जनरेट करने के मेथड होते हैं ना बेटा, सबसे लेंथी सबसे कॉम्प्लेक्स जो बना दिया गया है वो है हमारा टाइम डोमेन मेथड फॉर जनरेटिंग कॉन्वोल्यूशनल कोड। ठीक। तो एग्ज़ाम में कई बार मैंने देखा कि एग्ज़ाम में आप लोगों से डायरेक्टली पूछा नहीं जाता है कि आप लोगों को कौन से किस मेथड का यूज़ करके कॉन्वोल्यूशनल कोड जनरेट करना है। अगर आप लोगों को कोई भी एनकोडर का डायग्राम दे दिया जाता है, बोला जाता है कि यू हैव फाइंड आउट द कॉन्वोल्यूशनल कोड, तो आप लोग को इन तीनों मेथड्स में जो भी ईजी लगे आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है ना। तो मैं इसको यहाँ पे समझा रहा हूँ टाइम डोमेन मेथड को, लेकिन मैं बोलूँगा आप लोगों को इसका अगर मेथड का नाम नहीं दिया होगा तो इसका यूज़ कम से कम करें, ठीक है। चलो इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग देखते हैं। सेम कॉन्सेप्ट, सबसे पहले हमें एनकोडर दिया होगा, एनकोडर के थ्रू हम लोग जनरेटिंग मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लेंगे, जनरेटिंग सीक्वेंस फाइंड आउट कर लेंगे, एंड जनरेटिंग सीक्वेंस फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर बात है यहाँ तक सभी को? ठीक। अब जो भी जनरेटिंग सीक्वेंस है बेटा, जैसे ये जनरेटिंग सीक्वेंस है पहले G1, है ना। तो ये जो हमारी पहली जनरेटिंग सीक्वेंस है ना बेटा, इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। सबसे लास्ट लाइन देखिएगा, सबसे लास्ट में आप लोग देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखो कैसे लिखा है, क्या रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है आप लोगों को। G0 G1 G2 जो भी हम, और यहाँ पे जो सबके टॉप में जो 1 1 लिखा हुआ है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम लोग पहली जनरेटिंग सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। तो पहली जनरेटिंग सीक्वेंस जो G1, इसको हम लोगों ने कैसे लिखा है, इस जनरेटिंग सीक्वेंस का रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है। क्लियर बात है? तो जो 1 है ना वो टॉप में सब में रिप्रेजेंट किया गया है, और इसकी जो पोजीशन है उसको 0 1 2 से रिप्रेजेंट कर दिया गया। इसको आप लोग एल भी कह सकते हैं। ये जो इसकी पोजीशन है ना, इस जनरेटिंग बिट की जो पोजीशन है, जैसे ये जो जनरेटिंग बिट की जो पहली पोजीशन, इसको स्मॉल एल कहा जाता है, इसको स्मॉल एल कहा जाता है। तो यहाँ पे जो एल की पोजीशन है वो 0 से लेकर 2 तक वेरी हो रही है।
फर्स्ट जनरेटिंग बिट की जो पोजीशन है उसको l इक्वल्स टू 0 पोजीशन कहा जाता है। सेकंड जनरेटिंग बिट की जो पोजीशन है l इक्वल टू 1 पोजीशन कहा जाता है। थर्ड जनरेटिंग बिट की जो पोजीशन है उसको l इक्वल टू 2 पोजीशन कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो G1 है उसका ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वैसे G2 को भी हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे। ये देखिए G2, समझ में आ रहा है सभी को? सिर्फ एल के जो हमारा एल है, जो हमारा जो जनरेटिंग बिट की जो पोजीशन है उसको हमें यहाँ पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि पूरा काम उसी का है, जो उसकी पोजीशन है जनरेटिंग बिट्स मैसेज बिट्स का। क्लियर बात है? वैसे ही अगर कोई मैसेज गिवन है, सपोज यहाँ पे कोई मैसेज, चलिए अभी इस क्वेश्चन में कोई मैसेज नहीं लिया, सपोज मैं एक मैसेज ले लेता हूँ। सपोज मैंने एक मैसेज ले लिया, मैसेज क्या लिया मैंने 1101। तो यहाँ पे ये जो इसकी पोजीशन है ना, ये हमारी पहली पोजीशन हो जाएगी M0, इसकी पोजीशन हो जाएगी M1, इसकी पोजीशन हो जाएगी M2, इसकी पोजीशन हो जाएगी M3। क्लियर बात है? तो यहाँ पे जो बिट्स की पोजीशन है बेटा वो बहुत ही मैटर करती हैं। यहाँ पे इस ये पोजीशन क्या है, L इक्वल्स टू 0 पोजीशन है, L इक्वल्स टू 2 पोजीशन है, L इक्वल्स टू 3 पोजीशन है ना। इसको G2 G1 G2 भी कहा जाता है, G0 G1 G2 भी कहा जाता है। सेम ये भी G0 G1 G2 पोजीशन भी कहा जाता है इसको। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है, समझ में आया यहाँ तक सभी जो मैंने अभी मैसेज बताया आप लोगों को? अब इसमें जो सीक्वेंस का यूज़ किया जाता है ना शिफ्टिंग के लिए, वो ये है, जिस रिलेशन का यूज़ किया जाता है शिफ्टिंग के लिए वो ये है ना। इसको ध्यान दीजिएगा, है ना। यहाँ पे आप लोग जो आउटपुट कोड फाइंड आउट करते हैं, आउटपुट कोड XI ध्यान दीजिएगा, आउटपुट कोड XIL, आउटपुट कोड XIL इक्वल्स टू समेशन ऑफ L इक्वल्स टू 0 टू M, समेशन ऑफ L इक्वल्स टू 0 टू M। यहाँ पे क्या है ये, G ऑफ L M ऑफ I माइनस L। क्लियर है यहाँ तक सभी को? कोई डाउट नहीं है ना? बहुत ही ध्यान से याद रखिएगा, ये वाला जो हमारा रिलेशन है ना जिसके थ्रू हमें शिफ्टिंग करना है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। अगर आप लोगों को, अगर आप लोगों ने मेरे ख्याल से डीएसपी में वो मेथड्स पढ़े होंगे, वो सब मेथड्स पढ़े होंगे कॉन्वोल्यूशनल कोड में, जैसे साइक्लिक कोड मेथड पढ़ा है आप लोगों ने? साइक्लिक शिफ्टिंग मेथड होता है, एक हमारा कोसेंट्रिक मेथड होता है ना। ये सब मेरे ख्याल से आप लोगों ने डीएसपी में कॉन्वोल्यूशनल कोड जनरेट करने के मेथड पढ़ोगे। वो सब हमारे टाइम डोमेन मेथड है। उसमें क्या होता है बेटा, एक सर्कल को हम लोग, जो कोसेंट्रिक मेथड होता है उसमें क्या करते हैं, एक सर्कल को कांस्टेंट रख के एक आउटर सर्कल को मूव कराते हैं, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे ये, वैसे ही यहाँ पे भी है टाइम डोमेन मेथड में, चाहे मैसेज हो चाहे जनरेटिंग सीक्वेंस हो, दोनों में से एक को हम लोग फिक्स रखते हैं और एक को चेंज करते जाते हैं। जैसे इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग जी की वैल्यू को फिक्स रखते हैं, हम लोग जी की वैल्यू को फिक्स रखते हैं और इस एम की वैल्यू को चेंज करते जाते हैं। इसका मतलब आप लोग अपने कॉन्वोल्यूशनल कोड जो आप लोगों ने डीएसपी में पढ़ा होगा ना, उसमें आप लोगों ने कुछ ऐसा वाला एक कॉन्वोल्यूशनल कोड पढ़ा होगा, एक इनर सर्कल होता है, एक आउटर सर्कल होता है। आउटर सर्कल को हम लोग रोटेट करते जाते हैं और सीक्वेंस को आपस में मल्टीप्लाई करते जाते हैं, है ना। तो दोनों सर्कल्स को आप लोग थोड़ी मूव करते हैं, आप लोग एक सर्कल को कॉन्स्टेंट रखते हैं, एक सर्कल को मूव करते हैं, है ना। तो सेम यहाँ पे भी वैसे ही, सेम यहाँ पे भी वैसे ही है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया बेटा, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक मिनट, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मैसेज वाला जो भी सर्कल है उसको मूव कराते जा रहे हैं और जो भी जनरेटिंग सीक्वेंस वाला जो सर्कल है उसको कांस्टेंट रखे हुए। ठीक है, तो ये सीधे सीधे जो हम लोग न्यूमेरिकल से सॉल्व करेंगे ना तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। और बहुत ही ध्यान से कीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो बार बार वीडियो को रिपीट करते जाइएगा, आप लोगों को श्योरली समझ में आ जाएगा। ठीक, हमें इस क्वेश्चन में m की वैल्यू दी गई है 10011, दैट मीन्स जो हमें m यहाँ से हम लोग प्रोवाइड करेंगे, इंसर्ट करेंगे, उसकी वैल्यू दे दी गई है। ठीक है, जो m हम लोग यहाँ से प्रोवाइड करेंगे बेटा, उसकी वैल्यू को यहाँ पे गिवन, उसकी वैल्यू गिवन है 10011। ठीक, यहाँ पे ये जनरेटिंग सीक्वेंस कितनी है, दो जनरेटिंग सीक्वेंस है। ऊपर वाली जो जनरेटिंग सीक्वेंस है उसमें बिट है G0 G1 G2, वैसे नीचे वाली जो जनरेटिंग सीक्वेंस है उसमें भी बिट है G0 G1 G2, है ना। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस दोनों में रिप्रेजेंटेशन में क्या रहेगा बेटा, जब हम लोग इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे ना तो यहाँ पे इसके सामने 1 1 1 लिखेंगे, लेकिन जब नीचे वाले का रिप्रेजेंटेशन करेंगे ना तो यहाँ पे इसके ऊपर में 2 2 2 लिखेंगे। तो 2 रिप्रेजेंट करता है कि हम लोग सेकंड जनरेटिंग सीक्वेंस को लिए, 1 रिप्रेजेंट करता है कि हम लोग फर्स्ट वाली जनरेटिंग सीक्वेंस को लिए। दैट्स इट। क्लियर बात सबको समझ में आई? सॉल्व करते जाएं, है ना। अच्छा,
यहाँ पे देखिएगा ये जो हमारी जनरेटिंग सीक्वेंस है ना, इसमें नंबर ऑफ बिट कितनी है, 3 है ना। तो L इक्वल्स टू 0 to 2, L इक्वल्स टू 0 to 2 है ना। अगर मान लो इस जनरेटिंग सीक्वेंस में टोटल 10 बिट्स होती, अगर इस जनरेटिंग सीक्वेंस में टोटल 10 बिट्स होती तो L की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मूव होती, L वेरीज फ्रॉम 0 to 9। ठीक, समझ में आया था। क्योंकि यहाँ पे जनरेटिंग सीक्वेंस में 3 बिट है, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ L वेरीज फ्रॉम 0 to 2। ठीक, तो L की जो वैल्यू हम लोगों ने 0 to 2 रखा है, L की वैल्यू हम लोगों ने 0 to 2 रखा है। क्लियर बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग पहली वाली जनरेटिंग सीक्वेंस को का यूज़ करते हैं। जब हम लोग पहली वाली जनरेटिंग सीक्वेंस का यूज़ करेंगे तो हमें x1 मिलेगा। जब हम लोग दूसरी वाली जनरेटिंग सीक्वेंस का यूज़ करेंगे ना, जब हम लोग x1 2 लेंगे, जब हम लोग दूसरी वाली जनरेटिंग सीक्वेंस का यूज़ करेंगे तो हम लोग दूसरे वाले आउटपुट की पहली बिट को फाइंड आउट करेंगे। क्लियर बात है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। ठीक, तो जब हम लोग इतना पुटअप कर लिए, एल की वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कर लिया, तब हम लोग अब आगे क्या करेंगे, हम लोग एक बार में एक आई की वैल्यू को पुट करेंगे। हम लोगों ने अब यहाँ पे वैल्यू पुट किया आई इक्वल्स टू 0। ठीक, तो जब आई इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो सीधे सीधे यहाँ पे 0 माइनस एल हो जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ देखो 0 माइनस एल हो जाएगा। अब यहाँ पे एल की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं, तो एल की जब पहली वैल्यू पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, जी0 है ना। और यहाँ पे भी एल की वैल्यू जी0 पुट किया, तो जी0 मल्टीप्लाइड बाई m0। ठीक है, ये वाला फर्स्ट वाला फॉर्म आप लोगों को मिल जाएगा। जब आप लोग यहाँ पे एल की दूसरी वैल्यू 1 पुटअप करेंगे तो क्या आ जाएगा, जी1 मल्टीप्लाइड बाई m-1, जी1 मल्टीप्लाइड बाई m-1। ठीक है, वैसे ही जब मैं तीसरे फाइंड पुट अप करूंगा तो जी2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी2 मल्टीप्लाइड बाई m-2। ठीक है, तो एम की -1 और -2 पोजीशन तो कहीं होती ही नहीं है, क्योंकि जब हम लोग m वाली बिट को रिप्रेजेंट किए थे, जब हम लोग m को रिप्रेजेंट किए थे, सपोज m हमारा क्वेश्चन में अगर ये दिया था, है ना, तो हम लोगों ने इसकी पोजीशन को क्या लिया था बेटा, m0 m1 m2, ऐसे ही लिया था हमने, m2, दिस वन इज m3 एंड द लास्ट वन इज m4, ऐसे ही हमने लिया था। तो यहाँ पे क्या m की कोई नेगेटिव इंटीजर है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे m की कोई नेगेटिव इंटीजर नहीं है, तो सीधे सीधे क्वेश्चन देख के ही, सीधे सीधे क्वेश्चन देख के ही आप लोग बता सकते हैं कि ये दो को हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। सिर्फ पहला वाला टर्म बचेगा, जी0 मल्टीप्लाइड बाई m0, है ना। चलो अब जी0 की वैल्यू क्या है, जी0 की वैल्यू है, ये देखो जी0 की वैल्यू क्या है बेटा 1, और m0 की वैल्यू क्या है बेटा 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप लोगों को 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 करना है। तो जब आप लोग 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 करेंगे, जब आप लोग 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 करेंगे तो आप लोगों को 1 मिल जाएगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो। क्लियर बात है, तो इसका मतलब हुआ कि आप लोगों को फर्स्ट वाले आउटपुट की 0th बिट मिल गई। क्लियर बात है यहाँ तक सभी को। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आई की वैल्यू को 1 पुटअप करेंगे, तो आई की वैल्यू को जब हम लोग 1 पुटअप करेंगे तो हम किसको निकालेंगे, फर्स्ट वाले आउटपुट की फर्स्ट बिट को निकालेंगे। ठीक, अब हम यहाँ पे आई की वैल्यू को 1 पुटअप कर रहे हैं। जब हम आई की वैल्यू को 1 पुटअप करेंगे, आई की वैल्यू को 1 पुटअप करेंगे तो ये जो पहली वाली बिट है ये तो हमारी 1 हो जाएगी। अब हमें एल की वैल्यू को प्रॉपरली पुट करते जाना है। एल की वैल्यू को पुट किया, सबसे पहले एल इक्वल टू 0 पुट किया, तो ये क्या हो गया, जी0 मल्टीप्लाइड बाई m1, जी0 मल्टीप्लाइड बाई m1, है ना। फिर जब एल की वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पे 1 पुटअप किया तो क्या हो जाएगा, एल की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जी1 मल्टीप्लाइड बाई m0, जी1 मल्टीप्लाइड बाई m0। फिर जब 2 पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, जी2 मल्टीप्लाइड बाई m-1। और क्योंकि m की कोई नेगेटिव इंटीजर होती नहीं है तो लास्ट वाले इसको आप सीधे सीधे कैंसिल आउट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को स्टार्टिंग के दो टर्म से मतलब होगा, जी0 मल्टीप्लाइड बाई m1, जी0 मतलब, जी0 मतलब, जी0 मतलब, जी0 मतलब ये वाली बिट, m1 मतलब सेकेंड बिट, है ना। तो आप लोग जी0 को, इस 1 को जब आप लोग इस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाई 0, जब आप लोग 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 करेंगे, जब आप लोग 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 करेंगे तो आप लोगों को 0 मिलेगा यहाँ पे। वैसे यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं आप लोग, जी1 मल्टीप्लाइड बाई m0, जी1 कहाँ से निकलेगा, चलो देखते हैं। ये हमारा जी1 और m0 कहाँ है, ये है हमारा m0, तो इसका मतलब हुआ 1 मल्टीप्लाइड बाई 1। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई, so when we multiply 1 with 1, when we multiply 1 with 1, so you will get 1। तो क्या मिला यहाँ से, 1 मल्टीप्लाइड बाई, तो यहाँ क्या मिला, 0 एक्सॉर 1, सो 0 एक्सॉर 1 मतलब 1। तो मुझे अपने फर्स्ट वाले आउटपुट की फर्स्ट वाली बिट मिल गई। ठीक, फिर वैसे i इक्वल टू 2 पुट करेंगे, निकाल लेंगे, फर्स्ट वाले आउटपुट की सेकंड बिट मिल जाएगी। i इक्वल टू 3 पुट करेंगे,
आई इक्वल टू 4 पुट ऑन करेंगे, आई इक्वल टू 5 पुट ऑन करेंगे, आई इक्वल टू 6 पुट ऑन करेंगे। बात समझ में आए? अब आप लोगों को ये क्वेश्चन आना चाहिए, अराइज होना चाहिए, अगर आप लोग ऑनलाइन हैं तो आप लोगों के क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि सर हम लोग आई की वैल्यू कब तक पुट करेंगे। आई की वैल्यू बेटा तब तक हमें पुटअप करनी है, आई की वैल्यू हमें तब तक पुटअप करनी है जब तक एक भी टर्म हमारी सीक्वेंस का एग्जिस्ट करे, है ना। मान लो मैंने आई की वैल्यू 6 रखा और यहाँ पे मुझे मिल रहा है m-6, m-5, m-2, है ना। तो क्योंकि कोई भी m की नेगेटिव वाली वैल्यू, नेगेटिव वाली सीक्वेंस तो पॉसिबल नहीं है, तो दैट मीन्स हमारी तीनों सीक्वेंस पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग उस i की वैल्यू को कंसिडर नहीं करेंगे। बात समझ में आई सभी को क्या बोल रहा हूँ मैं? ये हमें i की वैल्यू को पुट ऑन करते जाना है और देखना है कि कहाँ तक हमें वैल्यू मिल रही है। जहाँ पे हमें वैल्यू मिलना बंद हो जाएगी उसके बाद हम लोग i की वैल्यूज को पुट नहीं करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? तो इतना सब करने के बाद हमें x1 की सारी बिट्स मिल जाएंगी, इतना सब करने के बाद हमें x1 की सारी बिट्स मिल जाएंगी, है ना। मतलब हमें जो पहला वाला जो भी आउटपुट है उसकी सारी बिट्स मिल जाएंगे। अब हमें सेकंड वाला जो भी आउटपुट था, इतना सब करने के बाद आपको क्या मिलेगा पता है? इतना जब आप लोग सब कुछ कर लेंगे तो आप लोगों को ये जो पहला वाला जो x1 था ना बेटा, इसकी सारी बिट्स आप लोगों को मिलेंगी इतना करने के बाद। अब जो सेम प्रोसेस आपने x1 के लिए अप्लाई किया था ना, अब सेम प्रोसेस आप लोग x2 के लिए भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, x2 के लिए भी सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया ना, x2, नाउ फॉर x2। अब आप लोग सेकंड वाले x2 के लिए अप्लाई करेंगे, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। आई की वैल्यू को 0 1 2 3 4 5 6 7 जहाँ तक पॉसिबल हो आप लोग रखते जाएंगे, जहाँ तक एक भी टर्म मल्टीप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करे आप लोग करेंगे। जैसे आप लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे m की वैल्यू तो नेगेटिव आ गई थी, यहाँ पे भी वैल्यू नेगेटिव आ गई थी, लेकिन पहली वाली वैल्यू थी m0, ये पॉसिबल था, है ना। तो आप लोग आई की वैल्यूज को पुट ऑन करते जाएंगे, तब तक करते जाएंगे जब तक एक भी वैल्यू एग्जिस्ट ना करे, है ना। अगर एक भी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो आप लोगों को आई की उस वैल्यू को कंसीडर करनी है, जब ना करे तो वहां पे आप लोग रोक देंगे। ठीक है, तो इससे क्या मिल जाएगा आपको, x1 की बहुत सारी बिट्स मिल जाएंगी, x2 की बहुत सारी बिट्स मिल जाएंगी। ठीक है, और जब सारी बिट्स को आप लोग साथ में कंबाइन करके एक साथ लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा भाई, जब आप सारी बिट्स को आप लोग एक साथ कंबाइन करके लिखेंगे तो आप लोगों को x1 की बहुत सारी बिट मिल जाएंगी, फिर आप लोगों को x2 की बहुत सारी बिट मिल जाएंगी। जैसे आप लोगों को मिल गई x1 इक्वल टू सपोज आपको मिल गया 1 0 1 1 0 1 0, और x2 आप लोगों को मिल गया 1 1 0 1 0 1 0। ठीक है, तो ओवरऑल जो x होगा वो सेम कॉन्सेप्ट, सबकी पहली बिट, सबकी दूसरी बिट, सबकी थर्ड बिट, सबकी फोर्थ बिट, सबकी फिफ्थ बिट, एंड सो ऑन। बात सबको समझ में आ रही है हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो ये वाला मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ना। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसलिए भी है क्योंकि अभी आप लोग सिर्फ वीडियो देख रहे होंगे, इसको बना नहीं रहे होंगे, जितना मैं आप लोगों को जानता हूँ। तो जब आप लोग इसे बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि लेंदी मेथड है, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेंदी मेथड है ना। जब एक दो बार आप लोग खुद से बनाएंगे तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों से बनने लगेंगे, है ना। तो आप लोग कोई भी एक क्वेश्चन ले लीजिएगा, सपोज आप लोग यही वाले क्वेश्चन ले लीजिए अपने होमवर्क के लिए, टाइम डोमेन अप्रोच। अब थोड़ा तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग भी बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, जितने लोग अटेंड किए हैं उनको भी, जितने लोग नहीं किए हैं उतने उनको भी। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी दूसरे टॉपिक की तरफ जाएंगे। ठीक, ओके, थैंक यू सो मच।